بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلباء، شرح الاجابی کا سبق نمبر 118 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو الاول من تلک المواضع الاربعۃ سے لے کر داخل فی المنادى تک پڑھیں گے۔ الاول من تلک المواضع الاربعۃ، ان چار مقامات میں سے پہلا مقام سماعی ہے، ای مقصور علی السماع، یعنی سماع پر بند ہے، لا یتجاوز، تجاوز نہیں کرتا، عن امثلۃ محدودۃ مسموعۃ، یعنی محدود مثالوں سے اور سنی گئی مثالوں سے، یعنی جو مسموع ہے، مسموع کا مطلب ہوتا ہے سنی گئی، بأن یقاس علیہا امثلۃ اخری، بئی طور پر کہ قیاس کیا جائے اس پر دوسری مثالیں، نحو امرأ ونفسہ، ای اترک امرأ ونفسہ، انتہو خیر لکم، ای انتہو عن التثلیث، کہ اے عیسائیوں باز آ جاؤ تثلیث سے، وقصدو اور ارادہ کرو، خیر لکم اپنے لیے اچھی چیز کا، وہو التوحید اور وہ توحید ہے، وأہلا وسہلا، ای اتیت اہلا ای مکانا مأہولا، کہ آپ نے ای معمورا، کہ آپ نے آپ آباد جگہ پر آئے ہیں، لا خرابن، خراب جگہ پر آپ نہیں آئے، او اہلن، یا آپ اپنے اقارب کے پاس آئے ہیں، لا اجانبا، نہ کہ اجنبیوں کے پاس آئے ہیں، وطئت سہلا من البلاد، اور آپ نے نرم زمین پر قدم رکھا ہے، لا حزنا، نہ کہ سخت زمین پر۔ والموضع الثانی من تلک المواضع الاربعۃ، ان چار مقامات میں سے دوسرا مقام منادہ ہے۔ المنادہ وہو المطلوب اقبال، منادہ کہتے ہیں جس کا اقبال جو ہے وہ مطلوب ہو۔ اقبال کا کیا مطلب ہے؟ ای توجہہ الیک بوجہہ او بقلبہ، جس کا متوجہ ہونا تمہاری طرف اپنے چہرے کے ساتھ یا اپنے دل کے ساتھ جو ہے مطلوب ہو۔ کما، جس طرح کہ اذا نادیتا، جب تو ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے، مقبلاً علیک، اس شخص کو جو متوجہ ہیں تمہاری طرف، بوجہہ حقیقتاً، اپنے چہرے کے ساتھ حقیقتاً، مثل یا زید، جیسا کہ یا زید، او حکماً، یا متوجہ ہیں آپ کی طرف اپنے چہرے کے ساتھ حکمی طور پر، جس طرح کہ یا سماء و یا جبال و یا ارض، فإنہا، یہ جو آسماں ہیں، نزلت، ان کو اتارا کیا، اولاً پہلے منزلتا من، اس چیز کے مرتبے میں، لہو صلاحیت النداء، جس کے لیے ندا کی صلاحیت ہو، ثم ادخلت علیہا حرف النداء، پھر داخل کر دی گئی ان پر حرف ندا، وقصد نداؤہا، اور ارادہ کیا گیا ہے اس کے ندا کا، فہی فی حکم من یطلب اقبالہ، تو یہ اس چیز کے حکم میں ہے جس کا اقبال مطلوب ہے، بخلاف المندوب، بخلاف مندوب کے، لأنہ المتفجع علیہ، کیونکہ مندوب جو ہے وہ متفجع علیہ ہوتا ہے، ادخل علیہ حرف النداء، داخل کیا گیا ہے اس پر حرف ندا، لمجرد التفجع، صرف محض تفجع کے لیے، لا لتنزیلہ منزلۃ المنادى وقصد ندائہ، نہ کہ منادہ کے مرتبے میں اتارنے کے لیے اور نہ ندا کے قصد کے لیے۔ فخرج بهذا القید عن تعریف المنادى، پس مندوب نکل گیا منادہ کی تعریف میں اس قید کے ذریعے سے۔ ولہذا افرد المصنف احکامہ بالذکر فیما بعد، اس وجہ سے مصنف نے مندوب کے الگ سے احکام بعد میں بیان کیے ہیں، وفیہ تحکم، اور اس میں زبردستی کا فیصلہ ہے، فإن المنادى المندوب، کیونکہ منادى مندوب جو ہے، ایضاً وہ بھی اسی طرح ہے، کما قال بعضهم، جس طرح کے بعض نے کہا ہے، منادن، کہ مندوب جو ہے منادى ہے، مطلوب اقبالہ حکما علی وجہ التفجع، کہ جس کا اقبال حکماً مطلوب ہے تفجع کے طریقے پر۔ فَإِذَا قُلْتَ، پس جب آپ کہیں گے یا محمداہ، فَكَأَنَّكَ تُنَادِي، گویا کہ آپ ندا دے رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، وَتَقُولُ لَهُ، اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں، تعال فَأَنَا مشتاق إِلَيْكَ، کہ آ جاؤ میں آپ کا مشتاق ہوں۔
फल-औला, पस औला बात तो यह है इदखालुहु तहत अल-मुनादा, मंदूब को दाखिल करना मुनादा के तहत, कमा फ़अलहु साहिबुल मुफस्सल, जिस तरह के साहिब मुफस्सल ने किया है। वकीला, और यह भी कहा गया है अज़्ज़ाहिरु मिन कलाम सिबवैहि अयज़न, कि सिबवे के कलाम से भी यह जाहिर हो रहा है कि अन्नहु दाखिलुन फिल मुनादा, के मंदूब जो है वो मुनादा में दाखिल हैं। अल-अव्वलु मिन तिलकल मवाज़िअल अर्बअति सिमाइयुन, यहां से मातिन उन 4 मकामात का जिक्र शुरू कर रहे हैं कि जहां पर मफूल बिही के फेल को उजूबन हज़फ किया जाता है। पहला मकाम सिमाई है। सिमाई का मतलब यह होता है कि जिसका ताल्लुक सुनने से हो, किसी कायदा और कियास को उसमें दखल न हो। और बाकी 3 मकामात कियासी हैं। पहला मकाम सिमाई चंद मिसालों पर मुश्तमिल है। पहली मिसाल तो यह है इमराउ व नफ्सहु, असल में था उतरुक इमराउ व नफ्सहु। उतरुक फिल को उजूबन हज़फ किया गया है। इसका मतलब यह है कि मर्द और उसके नफ्स को उसके हाल पर छोड़ दो। ये मिसाल उस वक्त बोली जाती है जब कोई शख्स नसीहत हासिल नहीं करता, मारने और पीटने और समझाने का भी उस पर असर नहीं होता, तो उस वक्त कहा जाता है अल-अव्वलु मिन तिलकल मवाज़िअल अर्बअति सिमाइयुन। 4 मकामात में से पहला मकाम सिमाई है। आई मकसूरुन अला सिमाए, जो बंद है सिमा पर, ला यतजावज़ु, तजावुज़ नहीं करता, अन अमसलतिन महदूदतिन मस्मुअतिन, चंद महदूद और मस्मुअ मिसालों से, यानी जो सुनी गई है। बेअयुकास अलैहा अमसलतुन उखरा, तजावुज़ का मतलब यह होता है बई तौर पर कि कियास किया जाए इन पर दूसरी मिसालें, ये नहीं हो सकता। नहु इमराउ व नफ्सहु, आई उतरुक इमराउ व नफ्सहु, इंतहु खैरल लकुम, ये दूसरी मिसाल कुरान पाक से दी है। इसके असल है इंतहु अन तस्लीस वक़्सिदु खैरल लकुम। ये खिताब ईसाइयों को है। ईसाई जो है वो 3 खुदा को मानते हैं, और ये इसका करीना है कि यहां पर इंतहु तस्लीस के बारे में है, और खैरल लकुम का ताल्लुक वक़्सिदु से है। इसको इंतहु का मफूल नहीं बनाएंगे, वरना माना गलत हो जाएगा, और माना यह हो जाएगा कि तुम उससे भी बचो जो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो ये तो गलत तर्जुमा है, गलत मतलब है। इसलिए खैरल लकुम का जो ताल्लुक है वो 1 से 2 से है। माना यह है कि 3 खुदाओं से बचो और जो तुम्हारे लिए बेहतर हो उसका कसद करो, और वो तौहीद है, यानी 3 खुदाओं को छोड़कर 1 खुदा के मानने पर आ जाओ। इंतहु अन तस्लीस वक़्सिदु खैरल लकुम वहुव तौहीद, कि बचो तस्लीस से और अपने लिए बेहतरीन चीज का इंतखाब करो, बेहतरीन चीज का इरादा करो, और वो तौहीद है। व अहलन व सहलन, तीसरी मिसाल अहलन व सहलन है। यहां पर भी उजूबन फिल महजूफ है। आहल जो है 2 चीजों के मुकाबले में आता है। नंबर 1, आहल वेरान और गैराबाद जगह के मुकाबले में आबाद जगह के लिए आता है। नंबर 2, आहल अगयार व अजानिब के मुकाबले में अपने ताल्लुक वाले लोगों के लिए आता है। अब अगर आहल का पहला माना मुराद लेंगे तो इसका माना यह होगा कि आबाद जगह। इस सूरत में आहल माहूल के माने में होगा, और यह जगह की सिफत होगी। इससे पहले मकानन मौसूफ महजूफ होगा। माना यह होंगे अतईत मकानन माहूलन आई मामूरन ला खराबन, यानी तो आबाद जगह में आया है, वेरान और खराब जगह में नहीं आया। और अगर आहल का दूसरा माना लेंगे तो माना यह हो जाएगा कि तुम अपने अकारिब में आए हो, अजानिब में नहीं आए। आई अतईता आहलन मकानन माहूलन आई मामूरन, के तो आबाद जगह में आया है, ला खराबन खराब जगह में नहीं आया। औ आहलन, या तुम अपने अकारिब के पास आए हो, ला अजानिबा, न के अजानिब के पास आए हो, अजनबियों के पास नहीं आए। वतईता सहलन मिनल बिलाद ला हज़नन, सालन नरम और अच्छी जगह को कहते हैं। इसका फेल वतईता है जिसका माना रुंदा है। तकदीरी इबारत यूं होगी वतईता सहलन मिनल बिलाद ला हज़नन, यानी तुम नरम और अच्छी जगह पर आए हो, सख्त जगह पर नहीं आए। वतईता सहलन मिनल बिलाद ला हज़नन, कि तुमने नरम जमीन को रुंदा है, न कि सख्त जमीन को। वल मौज़िउ सानी मिन तिलकल मवाज़िअल अर्बअति, अब मातें जो है उन बाकी 3 मकामात का जिक्र शुरू कर रहे हैं कि जहां पर मफूल बिही के फेल को उजूबन हज़फ किया जाता है। ये 3 मकामात जो हैं ये क़ियासी हैं, और उनमें से पहला मकाम मुनादा का है। मुनादा का लुग़वी माना है बुलाया हुआ,
निदा दिया हुआ, आवाज दिया हुआ। जिसको निदा दी जाए उसको मुनादा कहा जाता है। मुनादा का इस्तिलाही माना यह है कि मुनादा वो है जिसकी तवज्जो को तलब किया जाए ऐसे हरफ के जरिए से जो अदउ के कायम मकाम हो। आम है वो तलब लफ्जी हो या तकदीरी हो। मसलन हम किसी को कहते हैं या ज़ैदो, तो हमने ज़ैद की तवज्जो को तलब किया ऐसे हरफ के जरिए से जो अदउ के कायम मकाम है, और यह तलब लफ्जी है कि हमने लफ्ज़ों में अदउ के कायम मकाम हर्फ या को जिक्र किया। वल मौज़िउ सानी मिन तिलकल मवाज़िअल अर्बअते, इन 4 मकामात में से दूसरा मकाम यह है वहुवल मतलूब अल मुनादा वहुवल मतलूब इक़बालुहु। मुनादा कहते हैं जिसका इक़बाल मतलूब हो। आई तवज्जुहु इलैका बिवजहिही औ बिक़ल्बिही। इस इबारत से शारिह जो है अल मतलूब इक़बालुहु की वजाहत बयान फरमा रहे हैं और फरमाते हैं कि मुनादा वो होता है जिसकी तवज्जो तलब की जाए। अब इसकी 2 सूरतें हैं। नंबर 1 तवज्जो है वजही के चेहरे के साथ मुतवज्जे होना, कि हर्फ निदा से मुखातब को मुतवज्जे करना जो पहले से मुतकल्लिम की तरफ मुतवज्जे न हो। और दूसरा जो है दिल से मुतवज्जे करना, यानी मुखातब मुतकल्लिम की तरफ मुतवज्जे हो लेकिन अंदेशा हो कि शायद ये किसी और ख्याल में मशगूल हो, तो ऐसे शख्स को हर्फ निदा से मुतवज्जे करना तवज्जो कल्बी कहलाता है। फिर हर एक की 2 किस्में हैं, हकीकी और हुक्मी। हकीकी तवज्जो की तलब उस चीज से होगी जिसमें निदा की सलाहियत हो, यानी वो चीज ज़िरोह हो, और उसको जब निदा देंगे तो तवज्जो हकीकी होगी, ख्वाह कल्बी हो ख्वाह वजही हो। नंबर 2 तवज्जो हुक्मी उन चीजों में होती है जिसमें निदा की सलाहियत तो नहीं होती। जब इनमें तवज्जो की सलाहियत नहीं है तो निदा के लिए पहले उन्हें इन चीजों के कायम मकाम करते हैं जिनके अंदर निदा की सलाहियत है, फिर उनको आवाज देते हैं। आई तवज्जुहु इलैका बिवजहिही औ बिक़ल्बिही, कि मुतवज्जे होना उनका आपकी तरफ चेहरे के साथ भी और अपने दिल के साथ भी। कमा जैसे रखे इदा नादेता, जब आप आवाज देते हैं मुक़बिलन उस शख्स को जो मुतवज्जे हैं अलैका आपकी तरफ बिवजहिही अपने चेहरे के साथ, हकीकतन हकीकी तौर पर मिसलु या ज़ैदो, औ हुक्मन या उस चीज को आप निदा दे रहे हैं जो हुक्मी तौर पर अपने चेहरे के साथ मुतवज्जे हैं। इस तरह के या समाओ या जिबालो और या अर्जो। यह इबारत एक सवाल का जवाब भी है। सवाल यह होता है कि जिन चीजों में तवज्जो की सलाहियत ही नहीं है उनको मुनादा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस सूरत में गैर ज़विल उक़ूल को निदा देना लाजिम आएगा, जैसे या जिबालो या समाओ वगैरह। इनमें मुतवज्जे होने की सलाहियत नहीं है, लिहाजा इनको मुनादा नहीं बनाना चाहिए। जबकि ऐसी चीजों को भी निदा देकर मुनादा बनाया जाता है। तो इसका जवाब यह है कि तवज्जो की 2 किस्में हैं, तवज्जो हकीकी, तवज्जो हुक्मी। तवज्जो हकीकी तो वही है कि जिस चीज को निदा दी जा रही हो वो हकीकतन अपने चेहरे या अपने दिल से मुतवज्जे हो, और तवज्जो हुक्मी यह है कि उन्हें ऐसी चीजों के कायम मकाम करार दिया जाए जिनके अंदर तवज्जो और निदा की सलाहियत है, फिर इनको मुनादा बनाया जाए। तो इनमें तवज्जो हुक्मी है, लिहाजा ये भी मुनादा में शामिल हैं। या समाओ या जिबालो या अर्दो फ़इन्नहा नुज़िलत, क्योंकि ये जो आसमां है या समाओ या जिबालो या अर्दो, इनको उतारा गया अव्वलन पहले मंजिलता जो लफ्ज है ये मुजाफ है मन की तरफ, उस चीज के मर्तबे में लहू सलाहियतुन निदाए जिसके लिए निदा की सलाहियत है। सुम्मा उदखिलत अलैहा हर्फुन निदाए, फिर दाखिल कर दिया गया इन आसमां पर हर्फ निदा। वकुसिदा निदाउहा, और इरादा किया गया है उसकी निदा का। आज हमने पढ़ा है अल अव्वलु मिन तिलकल मवाज़िअल अर्बअते से लेकर दाखिलुन फिल मुनादा तक। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।